Major Jayesh Verma once again welcome you all to this edition of Value Talks, where we will have rather different topic of discussion today, which will actually enable you to take a financial calls as far as your investments are concerned. So we have with us today Mr. Jitendra Chaudhary. You must have witnessed or rather attended few of his webinars in which he is trying to enlighten you on varied aspects of financial planning. Let it be mutual funds, let it be derivatives, equity, and other instruments of investment which we carry out in our day-to-day life. What does it signifies? What value it carries in our life? Whether we should go with a particular way of investment plan or we should take expert advice. So all these issues are being discussed with us constantly for last 3 to 4 months by none other than Mr. Jitendra Chaudhary. Jitendra, welcome to the show. Good evening, Major Verma, and good evening to all the participants. Hope everyone is doing fine. Thank you. So, ladies and gentlemen, in the process of financial well-being, today we will be discussing a topic wherein we have option of systematic withdrawal plan as well as systematic transfer plans. So, in our life, obviously, everybody of us keeps some investment, some savings, occupied for or rather planned for future. So, most of the times we as a layman who's not financially qualified to take calls on investment on hearsay, we invest in different instruments, and at the end or rather later on we find that we could have done better. So keeping that into the mind, today we will discuss with Jitendra that how we can actually withdraw or transfer our existing investment into something better. So, starting with the webinar, I would like to know what exactly we are talking about over here when we say systematic withdrawal plan or when we say systematic transfer plan. So, what do you exactly mean by that? So basically, two different facilities provided by all the mutual fund houses where we invest our money. ये तरीका है इन्वेस्ट करने का या पैसे को विड्रॉ करने का. अभी तक हम लोग सभी ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है कि आप अपना एक मुश्त पैसा यानी लमसम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मंथली बेसिस पे एसआईपी चला सकते हैं. ये तो हम सबको ही पता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स ने और जो सेबी है, इन्होंने काफी सारे कैंपेन्स वगैरह रन किए. एसआईपी की काफी सारी एड्स देखने को मिलती है दिन में. आप जब भी टीवी ऑन करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ अंतराल पे, कुछ इंटरवल पे आपको एक आधी एड दिख जाए जिसमें कभी महेंद्र सिंह धोनी, कभी सचिन तेंदुलकर आपको बताते हैं कि एसआईपी करना कितना अच्छा होता है. तो कहीं ना कहीं हम एसआईपी को तो समझ गए हैं, बट एसआईपी के अलावा भी एक फैसिलिटी होती है जिससे कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में सही तरीके से और एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसको एसटीपी कहते हैं, जिसको अगर मैं बताऊं तो ये एक तरीका है जिसमें आप अपने पैसे को, अगर आपके पास लमसम है, मान लीजिए आपको कोई बोनस आया है या आपको कोई एक बेनिफिट मिला जहां पे आपके पास एक मुश्त पैसा इकट्ठा हो गया आपके बैंक अकाउंट में, और ये कुछ भी हो सकता है, लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और आप चाहते हैं कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू. तो कई बार ये एक डायलेमा होता है कि क्या इसको लमसम डाल दिया जाए, क्या मार्केट सही है कि मैं अपना ये जो पैसा है जो मैंने इतनी मुश्किल से जोड़ा है और जो मेरे को इतने हार्डशिप के बाद मिला है, इसको मैं एकदम से मार्केट में एक्सपोज कर दूं, ये जानते हुए कि मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी बनी रहती है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं. तो एक इस डायलेमा की वजह से लोगों को ये लगता है कि लमसम डालना ठीक नहीं है, जो कि मैं भी मानता हूँ. कहीं ना कहीं लमसम आपको ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स देगा अगर आपने गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया. तो उसको काउंटर करने का तरीका है कि आप उसको लमसम ना डाल के, और अगर आप लमसम डाल रहे हैं तो उसको किसी अच्छे डेट फंड में डाल दीजिए, लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म फंड में, और वहां से धीरे धीरे करके उसको ट्रांसफर करिए एक इक्विटी फंड के अंदर. तो मान लीजिए, जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लूं, मान लीजिए हमने एक फंड सेलेक्ट किया एसबीआई का, उसके लिक्विड फंड में हमने 5 लाख रुपए पार्क कर दिए, और उसी के ही हमने एक या दो इक्विटी फंड चूज कर लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट होराइजन और हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रहे हैं. तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वहां से एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर का एक मैंडेट इशू कर दिया कि हमें हर हफ्ते या हर महीने मान लीजिए 5,000 रुपए शिफ्ट करना है डेट फंड से इक्विटी फंड के अंदर. तो ये ऑटो मोड पे अपने आप ही ट्रांसफर चलता रहेगा जब तक का आपने मैंडेट दिया हुआ. तो इससे जी, आपको तो दो बेनिफिट होते हैं. एक तो जी 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 बेनिफिट पे हम बाद में आएंगे. पहले मैं थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूंगा और हमारे दर्शकों जी की क्लैरिटी के लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें इन चीजों पर. सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान,
सो विड्रॉल प्लान जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है और जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, इट इज simply withdrawal, let it be partial or a complete withdrawal of your investment from a particular instrument. So जी what is the basic difference? So withdrawal में तो आपने withdrawal कर लिया, ट्रांसफर में फिर भी समझ में आता है कि आपने डेट से इक्विटी में या you have opted for some different instrument. But as far as जी withdrawal is concerned, so are we suggesting closure of mutual funds or investments? काइंड ऑफ सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि कभी ना कभी उसको आपको विड्रॉ करना है, या तो अपने किसी गोल के लिए विड्रॉ करना है, या आपको एक रेगुलर इनकम के लिए विड्रॉ करना है अपने खर्चे चलाने के लिए। तो कभी ना कभी तो वो पैसा निकलेगा। आप ऐसा तो है नहीं परपेचुअलिटी के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी ना किसी रिक्वायरमेंट के टाइम पे वो पैसा निकलना है। अब मान लीजिए जी आपको रेगुलर इनकम चाहिए और आप चाहते हैं आपका एक लंबे टाइम में एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन गया है, वहां से आप एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। तो जी जनरली जो मैंने देखा है उसमें क्या होता है कि लोग सारा का सारा पोर्टफोलियो विड्रॉ करके अपना बैंक अकाउंट में रख लेते हैं या एफडी में डाल देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए रेगुलर इनकम चाहिए और आपको पार्शियल ही विड्रॉ करना है, तो आप एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का बेनिफिट फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जहां पे आप एक मैंडेट देते हैं कि मुझे हर महीने या हर साल इतना पैसा विड्रॉ करना है। एएमसी उतने अमाउंट की यूनिट सेल करके आपको उतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि जैसे आप एसआईपी करते हैं ना, ये एसआईपी का अपोजिट है। एसआईपी के केस में ओके आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता है और म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। एसडब्ल्यूपी के जी केस में आपके म्यूचुअल फंड से डेबिट होता है और आपके अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाता है। आप इसमें यहाँ पर एक और जी सवाल आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ जी आई हैव अ पोर्टफोलियो, लेट्स से ऑफ 100 is too huge a number, let's say 10 instruments in mutual fund. So जी when you say withdraw, it obviously means that selling of particular product. So इस जी तरीके से विड्रॉल के केस में तो जीरो धीरे धीरे होते हुए हमारा पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा. हाँ, जीरो हो सकता है अगर आपका विड्रॉल ज्यादा है और आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है आपके पोर्टफोलियो पे वो कम है। तो ऑब्वियसली सिंस आपका विड्रॉल ज्यादा है और उसकी इंक्रीज कम है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज कम है, तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद जाके वो जीरो हो जाएगा। बट अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि आपने इमीडिएट विड्रॉल नहीं लिया है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए है, मैंने उसको आज इन्वेस्ट कर दिया और उसको जी इमीडिएटली विड्रॉ ना करके थोड़ा सा डेफर्ड एन्युइटी ली, मतलब मैंने 2-3 साल का समय दिया उस पोर्टफोलियो को, और 2-3 साल जी के बाद वहां से मैंने एक रेगुलर अमाउंट विड्रॉ करना शुरू किया जो कि मेरे रिटर्न के बराबर या उससे कम है। एग्जाम्पल के जी तौर पे मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 8% का रिटर्न दे रहा है और आपने जी उसमें से 6% विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो लॉन्ग टर्म में जी क्या होगा कि आपका वो 6% का विड्रॉल भी होता रहेगा और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में वो आपको ज्यादा अच्छा एक ग्रोथ भी देगा और साथ में रेगुलर इनकम भी देगा। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि आप जिस फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं उसमें ग्रोथ क्या मिल रही है और वहां से आप विड्रॉल कितनी तेजी से कर रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा तेजी से विड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न कम है, आपका विड्रॉल ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल इरोड होगा। बट देखा ये गया है, इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल के पे आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, मैंने एक कंपैरेटिव बनाया हुआ है इसका, कि अगर आप डेफर्ड जी एन्युइटी लेते हैं और धीरे धीरे करके विड्रॉल करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, जितना आपको पैसा चाहिए आप उतना ही विड्रॉ करते हैं, तो एक सब्सटेंशियल सा ग्रोथ भी मिलता है और एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है, जो कि आपके लिए एक पैसिव इनकम का या पेंशन का काम कर सकती है। तो जैसे मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं, वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर आते हैं आर्मी से, या फिर सुपर एनुएट कर आते हैं, तो उनके लिए हम इस तरीके की अरेंजमेंट करते हैं कि उनका ये कॉर्पस हम एक हाइब्रिड टाइप के या लोअर रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, वहां से उनको एक रेगुलर इनकम देना शुरू कर देते हैं, जिससे बेनिफिट ये होता है कि उनका पोर्टफोलियो ग्रो भी करता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कहीं ना कहीं उनको वो एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक वो कंपैरेटिव दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरीके से प्लीज. काम करता है, कितना मैजिकली काम करता है। So, ladies and gentlemen, by the time Jitendra is pulling out his screen, let me just request you, all of you, to please like, share, and subscribe our platforms to your friends and family. We are over here coming almost every day with varied topics of your interest, which may benefit you as well as your friends and family. So, please do like, share, and subscribe our YouTube channel as well as Telegram channel, and do join our WhatsApp groups. सो जितेंद्र, इससे पहले कि आप इसी पर आगे जाए, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं जो कि मेरे जहन में आ जी रहा है. जैसे कि मैंने भी आपसे पूछा कि अगर आप continuous withdrawal, if you keep carrying out the withdrawals, at some point of time your portfolio will become zero. Now connecting this question with my next question, that withdrawal in case the market is down, in case the market is in shambles, then also it will impact your portfolio heavily. What do you have to say about that?
Obviously, it will. And in fact, when market goes into a downtrend, it impacts not only the portfolio from where you're taking regular income, it impacts your other portfolio where you're not withdrawing money also. तो गिरेगा मार्केट तो दोनों ही पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करेगा. यहाँ पे सिंस आप विड्रॉल ले रहे हैं तो हो सकता है आपको इम्पैक्ट ज्यादा लगे क्योंकि आप विड्रॉल भी ले रहे हैं और मार्केट भी नीचे जा रहा है. बट ऐसा जनरली देखा गया कि बहुत लंबे टाइम तक मार्केट गिरता नहीं है. एक पर्टिकुलर टाइम तक मे बी 12 से 18 महीने अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता भी है तो वापस रिकवर करता है और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देना शुरू कर देता है. तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा. आप ये नहीं सोच के चल सकते कि मेरे को 3 साल के लिए ही एचडब्ल्यूपी चलाना है या मुझे सिर्फ 5 साल के लिए चलाना है. आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है, आप अपनी रिटायरमेंट की इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है ये 20 साल तक आपके साथ रहे ये पोर्टफोलियो. मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल के साथ. आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको. Yes, it is visible. अच्छा, ये आप कोई रिकमेंडेशन नहीं मानिएगा, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इस फंड को यूज किया है. ये किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी तरफ से पहले से एक डिस्क्लेमर है. तो मैंने एसबीआई का एक हाइब्रिड फंड है जो कि इक्विटी और डेट का मिक्स होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 60-65% इक्विटी है और 30-40%, 35-35% आपका डेट में पैसा जाता है. अजम्पशन ये है कि हमने 1 करोड़ पे डाल के रख दिया आज से 10 साल पहले 2014 में. तो अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट डेट देखेंगे तो 1 जनवरी 2014 को हमने 1 करोड़ पे इन्वेस्ट कर दिया और वहां से हमने मंथली बेसिस पे 50,000 पे विड्रॉ करना शुरू कर दिया. अगले ही महीने मतलब जनवरी में पैसा डाला, फरवरी से विड्रॉ लेना शुरू कर दिया. Okay. तो अगर आप नीचे देखेंगे तो कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ. कैलकुलेशन ये कहती है और ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, ये मेरा अपना कोई इसमें रोल नहीं है. दिस इज देयर ऑन दी इंटरनेट, यू कैन गो एंड डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ. तो हमने पिछले तकरीबन 10 साल में 109 विड्रॉल कर लिए, 109 इंस्टॉलमेंट्स हमने निकाले. टोटल हमने तकरीबन 54,50,000 पे यानी 54.5 लाख रुपीज हमने विड्रॉ कर लिया है. क्योंकि हम 50,000 पे हर महीना निकाल रहे हैं तो 109 महीने निकाला तो तकरीबन 54.5 लाख रुपए हमने विड्रॉ कर लिया. आज की डेट में हमारे 1 करोड़ की वैल्यू आफ्टर द विड्रॉल इज 2,28,00,000 रुपए. After the withdrawal, you mean to say? आफ्टर द विड्रॉल. तो अगर टोटल Based on कॉर्पस की बात the करें, performance, yeah, based on the performance बेस्ड ऑन of द the instrument परफॉर्मेंस, starting from जी, 14th. तो Okay. आपको दोनों बेनिफिट हो गए. आपको रेगुलर इनकम भी मिल गई, साथ में आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ भी हो गया. तो अगर मैं टोटल कॉर्पस की बात करूं तो ये तकरीबन बैठता है 27 से 28, मतलब 2,70 से 80 लाख रुपए के आसपास. और अगर परसेंटेज रिटर्न की बात करें तो तकरीबन 14% है. अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्या अगर हम इसको एनुअली इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ना हर साल. ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 50,000 पे आज से 10 साल पहले खर्च कर रहे थे हर महीना, तो आज भी आप 50,000 ही खर्च कर रहे होंगे. तो इसका हमने दूसरी एक और कैलकुलेशन किया जिसमें ये देखा कि अगर हम अपने खर्चों को हर साल 10% से इंक्रीज करते हैं तब किस तरीके के रिटर्न आए हैं. तो ये आप जो एग्जांपल अब देखेंगे उसमें ये 10% इंक्रीज वाला ऑप्शन लिया हुआ है. इसमें एक थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो ये है कि हमने इमीडिएट ना रिटर्न लेते हुए हमने इसको डेफर करके लिया है. पहले हमने क्या किया था कि हमने जनवरी 2014 में पैसे डाले और फरवरी से विड्रॉ करना शुरू कर दिया. अब हमने क्या किया, हमने जनवरी में पैसे डाले 2014 में, उसको विड्रॉ किया 3 साल बाद. हमने 3 साल का समय दिया अपने पोर्टफोलियो को ग्रो Mature. करने के लिए. हाँ, कि जी. थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ रिटर्न जनरेट हो जाए, क्योंकि अगर मैं डे 1 से विड्रॉल शुरू कर दूंगा तो ऐसा भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो को उतनी ग्रोथ ना मिले. तो मैं थोड़ा सा डेफर कर देता हूँ. ऑब्वियसली बात है 2-3 साल हम वेट कर सकते हैं, तो 2-3 साल वेट करने के बाद अगर विड्रॉल करते हैं तो वो ज्यादा फेवरेबल बन जाता है हमारे लिए. अब अगर हम यहाँ पे सेम एग्जाम्पल को देखें, 2014 में हमने 1 करोड़ पे डाल दिया, 50,000 पे इंक्रीजिंग एट 10%. हर साल हमारा खर्चा जो है वो 10% यानी 6 लाख रुपए से शुरू होके हर साल 10% से इंक्रीज कर रहा है. हमने जनवरी 2017 से विड्रॉ करना शुरू किया और आज तक विड्रॉ कर रहे हैं. हमने 74 इंस्टॉलमेंट्स निकाल ली, मतलब फ्रॉम जनवरी 2017 टिल फरवरी 2023 वी हैव विड्रॉन 74 इंस्टॉलमेंट्स पर मंथ. तो तकरीबन जी. 48 लाख रुपीस हमने विड्रॉ कर लिया. आज की डेट में हमारे जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी उसका वैल्यू आता है 2.55 करोड़. तो यानी 2.5 Excluding करोड़ का withdrawal. कॉर्पस एक्सक्लूडिंग विड्रॉल. सो दिस इज द करंट वैल्यू. जो आपकी जेब में आ गया, आपके अकाउंट में आ गया, वो आ गया. दिस इज द करंट वैल्यू which is approximately 13.88% का CAGR, which is जी. वेरी गुड. मतलब अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आपको इस तरीके की ROI देखने को ही ना मिले. जी. और यहाँ पे आपने कोई बहुत मेहनत नहीं किया, आपने एक अच्छा फंड आइडेंटिफाई किया, एक अच्छा फंड मैनेजर आइडेंटिफाई किया, उसमें आपने पैसा डाल के छोड़ दिया और कुछ समय दिया उस पैसे को ग्रो होने के लिए, और फिर वहां से एक रेगुलर इनकम की तरह पैसे को विड्रॉ करना शुरू कर दिया. तो ये कहीं ना कहीं एक ब्यूटी है SWP की, जो हम लोग कई बार या तो अनजाने में छोड़ देते हैं या हमें लगता है कि पता नहीं ये काम करता होगा नहीं करता होगा, तो इस वजह से छोड़ देते हैं. इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि SWP जैसी भी कोई अरेंजमेंट होती है म्यूचुअल फंड के अंदर. इस नेग्लिजेंस कह लीजिए या इग्नोरेंस कह लीजिए, इस वजह से भी हम लोग इस तरीके की ऑप्शंस को
यूटिलाइज नहीं कर पाते अपने फेवर के लिए। जी, यहाँ पर जितेंद्र, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू दैट Sure. हमने जो पिछले 2 से 3 जो हमने वेबिनार्स किए थे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इन म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, वी हैव जी। ऑलवेज harped upon a point where we have suggested or guided our viewers for long term holding of portfolio. So in हम्म। example one, which we have discussed today for SWP, that is withdrawal plan, that जी। seems to be in contrast to what we have actually suggested. So what do you have to say about that? Connecting to this question only, I will ask you what exactly are the benefits of SW? See, Major Verma, we are not contradicting the point. The point is, whenever you need the money, and especially when you retire and you need your post-retirement expenses, you should opt for SWP rather than withdrawing the entire corpus. So that is the point. So there can be two situations. Someone who will retire after a certain period of time, so he still has substantial working life left. So he or Yeah. she can invest the money now, let the money grow over the period of time, and once he or she reaches the verge of retirement, then they can start a passive withdrawal from the mutual fund portfolio. So that is one thing. The second thing is someone who's superannuating, retiring today, and he or she needs money from tomorrow. So they can maybe start the regular income from these SWPs from day one, but initially keep the withdrawals at a lower rate so that your money gets some appreciation over the period of time. तो थोड़ा सा समय देके अगर आप छोटा विड्रॉल शुरुआत में करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज भी करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और एक पोर्टफोलियो आपने बना लिया है, तो उस पोर्टफोलियो को एकदम से कन्वर्ट मत करिए कि उसको पूरा का पूरा विड्रॉ करके मैं तो एफडी में डाल दूंगा या कहीं सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन आपके लिए खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेशन तो तब भी है। तो आपको इन्फ्लेशन को तो रिटायरमेंट के बाद भी काउंटर करना है, और उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि लेट द मनी ग्रो। वो पैसा बढ़ता रहेगा और आप उसमें से धीरे धीरे विड्रॉल करते रहेंगे, तो वो आपके खर्चे भी चलाने में मदद करेगा, साथ में आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ भी देगा। हो सकता है कि अगर सही तरीके से मैनेज किया गया तो वो पैसा आप आगे इनहेरिटेंस में भी देके चले जाए, सिर्फ खुद ही सेल्फ कंज्यूम ना करें। Understood. So withdrawal plan is clear in my mind and hopefully minds of viewers also. For viewers, just a request: if you have any questions, you can keep noting down them in our chat, or you can put the question in chat box. In the flow of conversation, we will answer that. Otherwise, at the end of our conversation, we will also open the house for question and answer session. That time you can ask the question. So, Jitendra, systematic withdrawal plan का सवाल है, वो कुछ समझ में आ रहा है. But what about transfer plan, systematic transfer plan, which we are talking about today? So how does it makes a difference to transfer from one mutual instrument to, if you're talking about the other mutual instrument, or there are some other investment ideas you have as far as transfer plan is concerned? जी, यहाँ पे मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या आपने कभी इन्वेस्ट किया है, तो आपका सबसे जी। बड़ा डर क्या होता है? जी, मेरा सबसे बड़ा डर होता है मार्केट के गिर जाने का और मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जीरो हो जाने का। ठीक है, तो ये डर को अगर आपको काउंटर करना है तो आपको क्या लगता है आपको कैसे काउंटर करना चाहिए? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, या तो मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर लूं और गिरने से पहले ही अपना पैसा निकाल के किसी और इंस्ट्रूमेंट में लगा दूं, दैट इज और वन वे। और दूसरा तरीका है कि मैं इंतजार करूं मार्केट के गिरने का और फिर गिरने पर एवरेज आउट करके सेम इंस्ट्रूमेंट को आई कैरी ऑन विथ माय लॉन्ग टर्म प्लान। अब मेजर वर्मा, ये दोनों चीजें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाती है। मार्केट को ना जी। प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट जी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। देयर आर मेनी माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द मार्केट। मतलब कई बार न्यूज पे चली जाती है, कभी कभार सेंटीमेंट्स पे चल जाती है, कभी कभार व्यूज पे चली जाती है। तो देयर आर सो मेनी Yes. फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट एंड कैन काइंड ऑफ कीप यू इन अ डिलेमा वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। तो ये जो डिलेमा जी। है ना कि मैं पैसे डालूं या नहीं डालूं, ये कई बार आपसे गलत डिसीजंस करवा देता है। मैंने जनरली देखा है कि जब लोग मार्केट गिरी हुई होती है तब तो पैसे को होल्ड करके बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है अभी जी। और नीचे जाएगी तब मैं पैसे डालूंगा, और वो वहां से क्या होता है मार्केट रिकवर करना शुरू कर जाती है और अपना एक जहां बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी था उस लेवल से कहीं और पहुंच जाती है। वहां पे सबको लगता है अरे यार हमने तो ना ट्रेन मिस कर दी, अब पैसा डाल देना चाहिए, और मार्केट को ना ऐसे पॉइंट पे वो जाके पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पे वो कहीं ना कहीं जहां खरीदने वाली जगह थी वहां से महंगी हो चुकी होती है। तो जी। इस जी। तरीके के गलत डिसीजन से बचने के लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपको हमेशा सही होना है।
जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हो, बट गलतियां अगर आप कम करेंगे ना तो आप अपना रिटर्न्स बढ़ा लेंगे। तो हमें जी गलतियां कम करनी है, और उन गलतियों को कम करने का तरीका ये है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मार्केट जी को टाइम नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलर सिस्टमैटिक रखना पड़ेगा। अगर आपके पास हर महीने पैसा बचता है तो आप एसआईपी चलाते हैं। अगर आपके पास लमसम कहीं से आया है, आपको बोनस मिला है, आपको कोई इनहेरिटेंस में पैसा मिला है, आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के टाइम पे कॉर्पस मिला है, या आपने सुपर एनुएट किया, आपके पास एक लमसम पैसा आ गया है, उसको आप मार्केट में एक्सपोज करना चाहते हैं, तो उसका सही तरीका ये है कि आप उसको पहले किसी एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल दें, किसी डेट फंड में, लिक्विड फंड में डाल दें, और वहां से अगले कुछ सालों का या कुछ महीने का बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उसको धीरे धीरे करके मार्केट में एक्सपोज करें। तो यहाँ पे जी बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है। अब आपको लगता जी है कि यार सबसे आसान तरीका तो ये 10 लाख रुपए उठाओ और मार्केट में डंप कर दो, मतलब किसी भी इक्विटी फंड में डाल दो अच्छे, और वो ग्रो कर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जी कई बार क्या होता है, आपने डाला और टाइमिंग इतनी गलत थी कि वहां से मार्केट क्रैश कर गई, 10% गिर गई, तो आपके 10 लाख की वैल्यू बन गई 9 लाख रुपए। अब वो 9 लाख रुपए बढ़ने में टाइम लगा देगी, पहले 10 आएगी फिर आपको रिटर्न देगी, तो हो सकता है आपके 3-4 साल इसी में निकल जाए। उससे बेटर जी तरीका ये है कि आप उस 10 लाख रुपए को एक या दो अच्छे डेट फंड में डालिए, उनके ही कॉरेस्पॉन्डिंग अच्छे इक्विटी फंड्स चूज करिए, और वीकली या मंथली बेसिस पे उस पर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करिए अगले 12 से 18 महीने में। इससे क्या होगा जी कि अगर मार्केट गिर भी रही होगी ना, तो आप खरीदारी के मोड में होंगे, तो जिस पैसे से आप पहले कम यूनिट खरीदे थे मार्केट गिरने से, उसी अमाउंट में आप ज्यादा यूनिट खरीदना शुरू कर देंगे, तो आपको एवरेज प्राइस का बेनिफिट मिल जाएगा। 5-7 साल जी आप उस पोर्टफोलियो को होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न देके चला जाएगा, और मार्केट की वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर कंपैरेटिवली कम होगा। तो एसटीपी करने जी का ये बेनिफिट होता है कि आपका पैसा 100% एकदम से मार्केट में एक्सपोज नहीं होता है। आप हमेशा जी बाइंग मोड में होते हैं। आपको कभी भी लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो ना मतलब बचाना चाहता हूँ अपने पैसे को, जितनी एसटीपी चली गई, बाकी मैं रोक देता हूँ, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। बट अगर आपने लमसम डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद तो भगवान भरोसे या मार्केट भरोसे है। मार्केट ऊपर जी जाएगी तो पैसा बढ़ेगा, मार्केट नीचे गई तो नीचे जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते फिर। तो जी इसलिए सुनने एसटीपी में तो सजेस्ट किया जाता है। जी सुनने में तो इट्स वेरी ल्यूक्रेटिव, बट आप डिसएडवांटेजेस भी बता दीजिए। बहुत बोरिंग तरीका है इन्वेस्ट करने का, मतलब आपको वो जो कई बार एक वो चाहिए होता है ना कि मुझे ना मजा आना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए, वो नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर हफ्ते हर महीने धीरे धीरे जाके इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, तो मजा नहीं आएगा। बोरिंग तरीका है। जी तो अगर आप बोरिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तो एसटीपी और एसआईपी सही तरीके हैं। बट अगर आपको थोड़ा मजा चाहिए और आपको लगता है कि यार मेरे को ना कुछ इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब कुछ हो तो सही, तो फिर जी कहीं ना कहीं आपके लिए एसटीपी काम नहीं करेगी। उसके लिए तो फिर आप शेयर मार्केट में जाके खेलिए, डेली बेसिस पे पैसा बढ़ेगा, डेली बेसिस पे नीचे जाएगा, हो सकता है सारा का सारा इरोड भी हो जाए, तो वहां मजा ज्यादा आएगा। यहाँ मजा नहीं आएगा, यहाँ पे धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनेगा। हो सकता है पहले 3 साल आपको रिटर्न ही ना दिखे, आपको ऐसा लगे कि यार मैंने 10 लाख डाले थे, आज भी 10 ही है। बट जैसे जैसे पोर्टफोलियो एक शेप लेगा, तो हो सकता है अगले 2-3 साल के अंदर आप 12-15% का कहीं ना कहीं एवरेज निकाल ले। अंडरस्टूड। पहला तो सो यही हो गया कि बोरिंग है जी। जी बोरिंग तो मैं नहीं कहूंगा, बट देयर वुड बी फ्यू व्यूअर्स who would, they'll agree that they do not have either time, or they do not have the luxury of, watching the market constantly because of their work, because of their जी nature of duties and job. So what do you suggest? STP and SWP suitable for whom? What class of investors you recommend opting, for these modus operandi? What do you So suggest? both are different facilities. If somebody is looking to invest lump sum into the markets at this point of time, wherein markets been volatile for last 1.5 years, so better है कि आप एसटीपी रूट ले, लमसम पैसा ना डाले भी मार्केट के अंदर, क्योंकि लमसम डालने का जब टाइम आएगा तो हो सकता है आपके पास तब लमसम हो ही नहीं, और अगर होगा भी तो हिम्मत नहीं होगी उस टाइम पे डालने की। तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके अभी धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाते रहे, एक छोटा छोटा अमाउंट हर महीने हर हफ्ते डालते रहे। एसटीपी के साथ एक एडवांटेज ये है कि वो आपको ना फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ा देता है। आप इसको डेली बेसिस पे भी कर सकते, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं ट्रांसफर्स को, और मंथली तो ऑप्शन है ही। तो अगर आपको लगता है कि यार मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, और आप कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा मार्केट की वॉलेटिलिटी एडवांटेज उठाना चाहते हैं, तो आप डेली और वीकली बेसिस पे एसटीपी कर सकते हैं। उससे आपको हर दिन के उतार चढ़ाव का बेनिफिट मिलेगा। हर दिन छोटा छोटा अमाउंट, या हर हफ्ते एक छोटा छोटा अमाउंट आपका जाके इन्वेस्ट होता रहेगा। तो एसटीपी का ये एडवांटेज रहेगा, जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो किसको सूट करता है, ये उनको सूट करता है जिनका कहीं ना कहीं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव है, जिनका टाइम होराइजन लंबा है, जो 2-3 साल अपनी इस इन्वेस्टमेंट की बाइंग को दे सकते हैं। मैं पोर्टफोलियो को नहीं कह रहा हूं, मैं बाइंग के टाइम होराइजन की बात कर रहा हूं। तो अगर आप 2-3 साल वेट कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे करके खरीदारी करते रहे आने वाले 2-3 साल में,
तो आप एसटीपी का एक ऑप्शन ले सकते हो और उसको 2-3 साल और होल्ड करें, मतलब आपका टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का कम से कम 5-7 साल का होना चाहिए, तो आपके लिए एसटीपी फेवर में काम करेगी। आप मार्केट की वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं अपने फेवर में काम कराना चाहते हैं तो एसटीपी आपके लिए है। फेवर में ऐसे काम जी करेगी कि अगर मार्केट गिरेगी तो भी आपका फायदा होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो भी आपका फायदा होगा, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पैसा एक्सपोज कर रहे हैं रादर देन एक लमसम पैसे को, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा जिनको अपने पोर्टफोलियो में एक इक्विटी डेट का मिक्स बना के रखना है कि मेरे पोर्टफोलियो में एक एसेट एलोकेशन होनी चाहिए कि कुछ पैसा मेरा इक्विटी में भी रहे और कुछ डेट में भी रहे, तो टाइम टू टाइम जो ये इक्विटी टू डेट, डेट टू इक्विटी करना होता है, ये एसटीपी के द्वारा जी किया जा सकता है। जब भी आपको लगता है आपका इक्विटी पोर्टफोलियो ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया है, डेट में कम है, तो आप इक्विटी टू डेट वापस एसटीपी चला सकते हैं। जब आपको लगता है डेट का वैल्यूएशन ज्यादा है, मार्केट नीचे है, इक्विटी नीचे गया हुआ है, तो आप डेट से वापस इक्विटी में एसटीपी चला सकते हैं, तो वो बैलेंस बना के आपको रखने में भी एसटीपी मदद करेगा। रही बात एसडब्ल्यूपी की, तो एसडब्ल्यूपी उनके लिए सुटेबल है जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, आज चाहिए या कुछ समय के बाद चाहिए, बट एक रेगुलर इनकम चाहिए अपने पोर्टफोलियो से। वो चाहते कि यार मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, साथ में कुछ पैसा अगर मुझे वापस भी आना शुरू हो जाए, मेरे को एक रेगुलर इनकम देना शुरू कर दे, चाहे वो पोस्ट रिटायरमेंट पे हो या रिटायरमेंट से पहले हो, तो वो एसडब्ल्यूपी को चूज कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि शुरुआत में विड्रॉल को कम रखें जिससे पोर्टफोलियो को ग्रो करने का टाइम मिले, और जब विड्रॉल करें जी तो आपका विड्रॉल का रेट वो कम होना चाहिए आपके रेट ऑफ रिटर्न से। तो मान लीजिए अगर आपका पोर्टफोलियो 8% का रिटर्न दे रहा है या 10% का रिटर्न दे रहा है, तो शुरुआत में 6% 7% ही विड्रॉ करें, जिससे कि बाकी का पैसा ग्रो होता रहे। इसके अलावा जी ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जिनको कहीं ना कहीं टैक्स एफिशिएंट रखना है अपने विड्रॉल को, क्योंकि अगर आप सारा का सारा पैसा एक साथ विड्रॉ कर लोगे तो टैक्स सारे पैसे पे लग जाएगा। जो कैपिटल गेन का जी आपको एडवांटेज मिलता है हर साल 1 लाख रुपए का, वो आपको एक ही बारी मिलेगा क्योंकि आपने सारा पैसा एक साथ विड्रॉ कर लिया है। बट अगर आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते हैं तो आपको हर साल वो 1 लाख रुपए का जो टैक्स फ्री वाला अमाउंट होता है कैपिटल गेन्स पे, इक्विटी पे, वो आपको हर साल मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज है उसमें। understood understood. So when we talk about withdrawal, so it just to sum it up, just correct me if I'm wrong, Jitendra, that when जी we talk about systematic withdrawal plan, it seems to me that looks more suitable for retiring personnel of armed forces or rather retired. Vis-a-vis when we talk about transfer plan, it seems it looks good to me that if somebody while serving, anyways nowadays armed forces officers are investing in markets, although it is not allowed, but they are investing through their advisors, so that looks more useful for the people who are serving. Just tell me if I'm wrong in my thought process, Jitendra. नहीं, आप ठीक कह रहे हो। जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, सिस्टमैटिक करना है और आपके पास लमसम पैसा है, तो एसटीपी ज्यादा अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का, मार्केट में एक्सपोजर लेने का। जब आपको पैसा वापस चाहिए तो सारा पैसा ना विड्रॉ करके थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर विड्रॉल करेंगे तो वो ज्यादा बेटर तरीका है मार्केट से एग्जिट करने का, रादर देन कि एक साथ पैसा निकाल लिया और उसके बाद फिर आप एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं कि मैं इस पैसे को कहाँ और इन्वेस्ट करूँ वापस से, क्योंकि जहां से आपने निकाला है वहां से तो 100% एग्जिट हो गई है। तो उससे बेटर है कि एक अमाउंट डिसाइड कर लें और जो जितना आपको जरूरत है पार्शियल विड्रॉल करें, धीरे धीरे करके विड्रॉल करें। और एसडब्ल्यूपी में एक एडवांटेज आपको ये भी हो जाता है कि आप इसको ना अपने खर्चों के साथ बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके हर साल खर्चे 5% से बढ़ रहे हैं, तो आप अपने एसडब्ल्यूपी को भी उसी हिसाब से ट्रिगर करके अलग से 5% हर साल बढ़ा के विड्रॉल ले सकते हैं। तो आपको मैंडेट आता है जो इनका एसडब्ल्यूपी का एक जो रिक्वेस्ट होता है उसमें यू कैन मेंशन देयर आर ऑप्शन वेयर इन यू कैन इंक्रीज इट एवरी ईयर बाय अ सर्टेन परसेंटेज, कि मैं 10% से बढ़ा के अगले साल लेना चाहता हूँ, उसके अगले साल और 10% से बढ़ा के लेना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे आपने रिक्वेस्ट दिया है या आपका मैंडेट गया उस हिसाब से ही आपका विड्रॉल बढ़कर आएगा। तो कहीं ना कहीं महंगाई के साथ आपका जो रेगुलर इनकम है या रेगुलर विड्रॉल है वो उसके साथ इन सिंक चलेगा। तो आपके जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे आपका विड्रॉल भी उस हिसाब से विड्रॉ हो सकता है, तो वो एक Understood. एडवांटेज है। और आपको बार बार ही ना अपना बैठ के सिस्टम पे रिडेम्पशन नहीं करनी पड़ती है। आपने एक बार मैंडेट दे दिया तो वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास हर महीने या हर क्वार्टर में या हर साल आपके अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएगा, विच इज अ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। Understood, understood. So I have one last question. When we talk about mutual fund investments, there are generally, and we have discussed in detail in our previous webinars, there are generally two trends which we find. One is lump sum investment, which generally a retiring officer, at the culmination of his service, when he gets the lump sum amount, as a full and final, that time he can obviously opt for. But most of the officers and most of the people do systematic investment plan in which they are contributing some monthly amount towards that investment. In that case, how do we use this withdrawal plan offer? Because transfer plan is still fine,
whatever SIPs we are investing, we can still go ahead and transfer that. But how about withdrawal? अगर मैं 10,000 रुपए की SIP डाल रहा हूं और लेट्स से मैं अपनी पूरी सर्विस में डालते आया हूं, तो मेरा कॉर्पस लेट्स से एट द एंड ऑफ द सर्विस इफ इट इज लाइक 2 to 3 crore rupees, so now my SIPs are still going on. जी Opposite to that, if I opt for withdrawal plan, तो मैं पैसा ले भी रहा हूं और दे भी रहा हूं. Isn't it a bit chaotic? Can you please throw some light on that? नहीं सर, क्योटिक नहीं है. इनफैक्ट ऑटो मोड पे चलती है चीजें. एसआईपी भी आपकी ऑटोमेटिकली डेबिट हो रही है, विड्रॉल आपका ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो रहा है. वो आपने देखना है कि आपके टोटल खर्चे कितने हैं. तो मान लीजिए मैं जी. एग्जांपल आर्म्ड फोर्सेस का ही लेता हूँ, ऑफिसर्स का ही लेता हूँ. आपने रिटायरमेंट ली और आपको एक अमाउंट एज अ पेंशन मिल रही है. अब वो पेंशन जी. आपको लगता है कि नहीं यार ये उतनी सफिशिएंट नहीं है कि मेरे सारे खर्चे मीट हो सके, मुझे और 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा चाहिए. तो आप अपने जी. म्यूचुअल फंड को वो आदेश दे सकते हैं कि भाई मेरे को 25 हजार रुपए ना हर महीना विड्रॉ करके देते रहो, क्योंकि मुझे 25 ही जी. चाहिए या 50 ही चाहिए. मेरे को पूरे 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं चाहिए जो मैंने अपनी पिछले 20 साल की वर्किंग लाइफ में एक्यूमुलेट किया है. मुझे तो बस 50 हजार रुपए महीना दे दो, मेरे खर्चे चल जी. जाते हैं. और मैं उस 50 हजार रुपए को अपने खर्चों के लिए या एसआईपी में चला रहा हूँ, तो उसके लिए अगर चला रहे हैं तो ज्यादातर लोग तो वैसे रिटायरमेंट के बाद एसआईपीज वगैरह और अपनी कमिटेड इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं. बट अगर आपको लगता है कि मुझे चला के रखनी है और आपका वो खर्चा अपना ऑटो मोड पे चलता रहे, तो आप एक मैंडेट दे देते हो कि भाई 1 लाख रुपए पेंशन आ रही है, 50 हजार रुपए म्यूचुअल फंड से विड्रॉल ले रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए मेरा महीने का हो गया और मेरा वो ऑटो मोड पे सारी चीजें चल रही है, खर्चे भी और मेरी इन्वेस्टमेंट भी. तो वो अपने आप चलती है, उसमें आपको कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है. तो वो एक ज्यादा अच्छा Understood. तरीका है इनफैक्ट. तो आपको तो कुछ करना ही जी. नहीं, आपने तो मैंडेट देनी है, एक साइन करके लेटर या फिर ऑनलाइन रिक्वेस्ट देनी है कि भैया 50 हजार रुपए हर महीना विड्रॉ करके दे दो. अब वो आपको इंक्रीमेंटल चाहिए, हर साल बढ़ता हुआ चाहिए, या सेम स्टैटिक अमाउंट चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है. अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड Understood. आपकी यूनिट्स को सेल करेगा, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देगा. Understood. Understood. Well, that answers my questions, Jitender. How will income tax calculated in mutual funds? Well, we have actually carried out a comprehensive talk on mutual fund, income tax, how you go about it. So, although I request you to go through our previously recorded Value Talks editions as far as mutual fund is concerned, but just to answer this, Jitender, income tax calculation on mutual fund. Mutual fund basically we'll split it into two parts. One is debt funds, one is equity fund. On debt funds, if it is short term capital gain, यानी अगर आपने 3 साल से पहले पैसा निकाला है डेट फंड से, तो उस केस में आपकी जो भी इनकम होती है, जो भी आपको कैपिटल गेन होगा, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और एज पर आपका टैक्स स्लैब यू पे टैक्स ऑन दी कैपिटल गेन्स. तो मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो आपकी टोटल इनकम 6 हो जाएगी और जो भी आपका टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आप उस पर टैक्स पे करेंगे. अगर आपने इसको 3 साल के बाद निकाला है, आपका जो विड्रॉल का पीरियड है, डेट फंड की बात कर रहा हूं मैं अभी, डेट फंड में 3 साल के बाद निकाला है, तो फिर आपको ऑप्शन मिलता है इंडेक्सेशन का, जिसमें आप आफ्टर इंडेक्सेशन 20% टैक्स देते हैं. तो मान लीजिए आपका इंडेक्सेशन के बाद अमाउंट आया 1 लाख रुपए, जिस जो आपका कैपिटल गेन है, तो उस पर आप 20% टैक्स देंगे, यानी 20 हजार रुपए. तो डेट फंड के केस में क्लियर है, 3 साल से पहले विड्रॉ किया तो इनकम में ऐड हो जाएगा, इनकम के हिसाब से टैक्स जाएगा. 3 साल के बाद विड्रॉ किया है तो इंडेक्सेशन हटाने के बाद, यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, जो कि इंडेक्सेशन टेबल हर साल सरकार डिक्लेयर करती है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगी और आपको 20% टैक्स देना होगा. इक्विटी के केस में अगर आप 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो आपको 1 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर 10% टैक्स देना होता है. और अगर आप 1 साल से पहले निकाल रहे हैं तो फ्लैट 15% देना होता है. तो अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए है और आपने 1 साल से पहले निकाला है तो 15%, यानी 15 हजार का टैक्स देना है. और अगर आपने 1 साल के बाद निकाला है और आपका प्रॉफिट 1 लाख है, तो पहला 1 लाख फ्री है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है. 1 लाख से ऊपर जाएगा तो आपने 10% अमाउंट देना है उस 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट का. Understood. I hope that answers Mr. Raju's question. I will also request you, Jitender, that the taxation on mutual fund on this aspect, if you can share with us in future some Excel sheet where we can get some idea, where our viewers can get and calculate by themselves that what exactly are the amounts and how the calculations are done. That will be very helpful, which if you share with, we will share it with our viewers on our Telegram group. Sure, we'll do that. So thank you. So that was the first. How much percentage of available funds which we get generally on retirement? And he's talking about short service commissioned officers, which is in tune of 20 to 30 lakhs, depending on different parameters, mainly leave encashment and DSOP. So if I leave those two components, generally officer who is a short service commissioned officer, he gets 20 to 30 lakh rupees as retirement gratuity.
So the question is how much percentage? Well, actually, Mr. Dubey, it is actually based on your own risk-taking capabilities. But let me hand over this question to Jitendra, who is expert. So I would not declare any percentage here. This should be aligned to your financial goals. तो जैसे Yeah. आपके गोल्स हैं और जितने लंबा आपका टाइम होराइजन है और जैसा मेजर साहब ने भी कहा कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप उस हिसाब से डिसाइड करें. परसेंटेज पे मत जाइए. परसेंटेज कई बार मिसलीडिंग हो सकती है. हो सकता है आपके लिए 50% कम हो, मेरे लिए 50% बहुत ज्यादा हो. तो उससे बेटर ये है कि आप अपने गोल्स के साथ अलाइन करके देखिए कि आपके आने वाले समय में गोल्स कब कब है. तो कौन सा गोल है जो आपका लॉन्ग टर्म है, जिसके लिए आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को यूज कर सकते हैं. अगर कोई ऐसा गोल है, चाहे वो रिटायरमेंट हो या आगे बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज हो, उसके साथ अलाइन करके आप पोर्टफोलियो बनाइए. परसेंटेज कितना यूज हो रहा है वो उस हिसाब से डिक्लेयर होना चाहिए. आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए. और आप कितने साल तक इसको होल्ड करके यानी पकड़ के रख सकते हो इस इन्वेस्टमेंट को, उसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए. ज्यादा देर किसी थंब रूल के इतना थंब रूल के हिसाब से कर दो. बिकॉज आपकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स अलग है, किसी और की अलग हो सकती हैं, तो वो थंब रूल काम करता नहीं है हर जगह पर. जी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दुबे, इफ यू वांट यू कैन सिंपली स्क्रॉल आवर लिस्ट ऑफ talks on our YouTube platform, and over there you will find financial planning for retired or retiring officers. If you go through that webinar, it is a comprehensive talk carried out by our experts on the subject of investments post retirement, specifically, in case of army officials, let it be short service commissioned officers or PMR or superannuated, whatever corpus fund you get, how you should plan on investing that, keeping in mind your own goal. So first, as already explained by Jitendra, you have to set up a goal for yourself and your investments, and then only you can go ahead. I request you to go through that webinar. If you still have questions, we will connect you with Jitendra one-on-one. Okay, so going ahead, Guneet Singh, he's asking about, after retirement, we all want a good amount in bank and stable monthly income. Now he's talking about safe instruments. So what is advisable to do? Do SIP, SWP, or equity, or later shift entire amount into SWP? What I actually wanted to ask Jitendra sir was basically if I want to have a stable income, say in at the end of the day when I retire, say 15 years from now, I want to have a corpus and then I want a monthly income out of that corpus also. Because Right, sir. मुझे अगर monthly income चाहिए तो SWP is the best fund. Now should I do my SIPs right from the day one, say from today, for the next 15 years by the time I retire, only in a WP fund, or should I choose a equity fund, keep doing SIP and then later on shift? Because I think there are certain charges also which the mutual fund companies charge once you change your put your entire, because in that case I have to first of all take out that entire 2-3 crores which I have accumulated. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.